A very good morning to all of you students. Today we are going to do some questions. I have sent you a PDF where there are around 27 questions. From the same book, I am going to discuss question number 11, question number 12, question number 15 and question number 16 in this video. Now let's see what question number 11 is. I hope it is visible now. Question number 11 is that we have to show the effect of these transactions and prepare a balance sheet. We have started business with cash, then rent received, accrued interest, commission received in advance and amount withdrawn. Now what I have done, I have already made this equation. So what you can do, just pause here and you can make the format and then resume again. So the first thing is that we have started business with cash rupees 60,000. So it was cash, so we are going to write cash over here 60,000 and capital 60,000. Second is rent received. If you have received, then you are going to write plus 2,000 in cash, and in capital also you are going to write plus 2,000. So new equation is going to be 62,000 plus 62,000. Second is accrued interest of rupees 500. Now what is accrued interest? Income that you have earned but you have not yet received. ऐसी इनकम जो आपने earn कर लिया पर अभी तक मिली नहीं है तो वो एक income. So you are going to add any incomes or profits in your capital. Second thing is that it is yet to be received, abhi milegi. So you are going to write over here accrued interest under the heading of assets plus 500. So our new equation is going to be 62,000 plus 500, no liabilities, 62,500. Next is commission received in advance and the amount is rupees 1,000. If you have received a commission, it means your cash has increased. So you will write over here plus 1,000, and you have received some commission in advance for which your work is yet to be, you haven't done the work, you have to give. So this is a kind of liability for the person. So here we are going to write under the term liability commission received in advance, and we are going to write here equal to plus 1,000, right? So now our new equation is going to be 63,000 plus 500 is equal to 1,000, 62,500. Okay, next is amount withdrawn and it is for rupees 5,000. So if you've withdrawn some money, you are going to write 5,000 and nothing else, and it is also going to reduce your capital. So now it will be 58,000 plus 500 is equal to 1,000 plus 57,500. Okay, now for the same question we have to prepare a balance sheet. So this is a format of balance sheet. You are going to write balance sheet, liabilities, amount, assets, amount. Now see, under the term liabilities you have one liability as commission received in advance. So you are going to write advance commission of rupees 1,000 and capital for 57,500.
and under the heading assets we have cash 58,000, cash 58,000, and we have accrued interest 500. So when we are going to total it up, our assets are going to be equal to our liabilities. So balance sheet made. So we have done with question number 11. Now let's start with question number 12. Now we are going to start with question number 12, and I've already written all the entries here. So question number 12, first point is started business with cash. Cash amount rupees 10,000. So I'm going to add 10,000 over here and 10,000 in the capital. Second point is paid rent in advance rupees 300. When you have already paid the rent, your cash is going to be reduced. Cash आपका कम हो जाएगा by 300 rupees, and you have paid the rent in advance and you still have to take the benefit of it. आपने एक महीने का रेंट पहले ही एडवांस में पे कर दिया, बेनिफिट लिया नहीं, और जिस भी चीज़ का बेनिफिट लेना बाकी होता है वो हमारा क्या होता है, एक एसेट. तो वी आर गोइंग टू राइट हेयर प्लस प्रीपेड रेंट and we are going to add here plus 300, and then there is no changes. We are going to write our new equation as 9,700 plus 300, no liabilities, plus 10,000. Okay, now let's see the next what it needs to say. Purchased goods for cash 5,000 and credit 2,000. आपने गुड्स खरीदे, कुछ तो कैश पे खरीदे और कुछ आपने उधार पे खरीदे, पर स्टॉक तो हमारे पास आया ना, तो एसेट के कॉलम में हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे, स्टॉक. तो आपने 5,000 का स्टॉक भी खरीदा है, 2,000 का भी, तो स्टॉक आपका टोटल कितने का आया, 5 + 2 दैट इज़ 7,000 रुपीज़ का आपके पास स्टॉक आया. इस 7,000 में से 5,000 के गुड्स तो आपने कैश पे खरीदे थे, तो कैश आपका ख़त्म हो गया. We are going to write here minus 5,000 rupees. Now no change in prepaid rent, right? And 2,000 जो था that is on credit. It means you still have to pay for it. It is your liability. तो हम liability के column में लिख देंगे creditors और यहाँ पे लिख देंगे 2,000 rupees. देखो बैलेंस हो गया 5 - 7. Or 7 - 5 is 2, and here also coming 2. So our new equation is going to be 4,700 plus 300 plus 7,000 is equal to 2,000 plus 10,000. Okay. Next, see the question. Sold goods for cash rupees 8,000, costing rupees 4,000. कॉस्टिंग रुपीज़, यहाँ पे आपको कैसे, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को. देखो आपने गुड्स बेच दिए 8,000 के, जिसकी कॉस्ट थी 4,000, मतलब गुड्स कितने के थे, 4,000 के. तो इफ़ 4,000 वॉज द कॉस्ट, तो आपके 4,000 का स्टॉक तो चला गया, येस और नो, येस. एंड आपको 8,000 का कैश आ गया, सो प्लस 8,000 ओवर हियर. सो वेयर इज़ द बैलेंस, बैलेंस इज़ योर प्रॉफिट, and any profit is added back to the capital. So here we are going to write plus 4,000. 4,000 की चीज़ 8,000 में बेची तो 4,000 का प्रॉफिट वहाँ आ गया. Hence our new equation is going to be 12,700 plus 300 plus 3,000 is equal to 2,000 plus 14,000 rupees. Next is paid salary 450 and outstanding salary 100. एक एक करके करते हैं. पहले आपने सैलरी पे कर दी, जब सैलरी पे कर दी तो आपका कैश कम हो गया -450, और आपकी कैपिटल भी रिड्यूस हो गई, दैट इज़ 450 रुपीज़, राइट. एंड देन दे आर सेइंग यू हैव ऑल्सो हैव एन आउटस्टैंडिंग सैलरी.
What is outstanding salary? Salary that has incurred upon you but you have not yet paid. Salary एक एक्सपेंस है आपका, पर अभी आपने पे नहीं किया, पे करना है, तो एक आपके लिए लाइबिलिटी भी हो गई. क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है तो वो कैपिटल में से लेस होगा, सो -100 ओवर ईयर. एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ आवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और वो एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटीज़ के कॉलम में एक और आ जाएगा outstanding expenses, right? So here you are going to write no creditors, but here we are going to write our outstanding salary that has been arrived plus 100. Okay, so now we are going to write our new equation, that is 12,700 minus 450, that is going to be 12,250 plus 300 plus 3,000. Here creditors 2,000, outstanding expenses 100 plus 14,000 minus 550, 450 minus and plus 100, तो ये आपका हो जाएगा 13,450 rupees. Okay, now next question is next transaction is bought a motorcycle for personal use. आप personal use के लिए एक बाइक लेके आ गए और क्योंकि वो personal use है, so it is a drawing and drawing is deducted from cash as well as capital, so that is going to be 3,000 rupees minus 3,000, no effect over here, no effect, minus 3,000. So our equation is going to be 9,250 plus 300 plus 3,000 is equal to 2,000 plus 100 plus 10,450. Okay, if you are going to total both the sides, it is going to be same. Now we have done with question number 12 also. Let's start with question number 15 of your book. So the question is like this: show an accounting equation for the following transactions, and transactions are these 7. Because these are quite big, I am not going to write all the transaction, but I am just going to number them. So let's see the first transaction. I'll zoom a bit for you. Okay, yes. D महापात्रा commenced business. इन्होंने business start किया और business में देखो वो क्या क्या लेके आए. कैश 1 लाख का चेक, that is bank. Goods of rupees 60,000. Then machinery of rupees 1 lakh, right? And furniture 1, 2, 3, 4, 5. 5 things are coming in one, right? So let's start this question now. We are going to write accounting equation serial number. I'm just going to write here assets because we are having many assets over here, equal to liabilities plus capital. Now he started the business, commenced the business with cash, and cash is of rupees 50,000. Then with bank is of rupees 1 lakh plus stock is of rupees 60,000. Machinery is again of 1 lakh plus furniture, and that is of rupees 50,000. So if you total up 1, 2, 3, 3,60,000 total आ रहा है, right? तो हम कैपिटल, क्योंकि जितना भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है वो एक तरीके की आपकी कैपिटल है, सो प्लस 3,60,000 रुपीज़. दिस वॉज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन.
Now let's read what the second transaction is telling you. I'm going to zoom it. See, second is saying 1/3 of the above goods. Goods कितने हमारे यहाँ पे देखो, goods हमें दे रखे हैं 60,000. 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash. Let's divide this question. It is trying to say कि 60,000 के जो स्टॉक हैं इसका 1/3 हमने सेल कर दिया, यही कह रहा है. तो 60,000 का 1/3 कितना हुआ बच्चों, 20,000 रुपीज़. तो हमने 20,000 के गुड्स को सेल कर दिया, राइट. तो इसका मतलब 20,000 हमें स्टॉक में से लेस करना है. बट दिस स्टॉक हैज़ बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इसको हमने 10% के प्रॉफिट पे सेल किया. अगर 20,000 का आप 10% इसमें ऐड कर दो जो कि है 2,000 रुपीज़, तो मतलब हमने 20,000 के स्टॉक को सेल कितने में किया, 22,000 में, राइट. कॉस्टिंग दिस बट सोल्ड एट दिस प्राइस. नाउ दे आर सेइंग, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, समझ आ गया. आगे वो क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश. 22,000 का जो 11,000 रुपीज़ है, हाफ जो है वो तो हमें कैश मिल गया, और बाकी जो 11,000 रुपीज़ है वो हमें कैश नहीं मिला. अगर आपने गुड्स सेल किए हैं, इफ़ यू हैव सोल्ड द गुड्स, तो इट मीन्स यू मस्ट बी रिसीविंग कैश. और इफ़ इट इज़ यू आर नॉट रिसीविंग कैश, देन इट मस्ट बी ऑन द क्रेडिट बेसिस. सो इफ़ दिस इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस, इट मीन्स वी आर बाउंड टू रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम आर डेटर्स. डेटर्स से हमें पैसा मिलेगा, तो हमारा एक और एसेट इंक्रीज हो गया. सो अगेन जस्ट रीड द ट्रांजैक्शन. 1/3 ऑफ द अबव गुड्स हमारे 60,000 के थे, उसका 1/3 20,000 हमने सेल किया हमने 2,000 के प्रॉफिट पे, मतलब 22,000 में सेल किया. और 22,000 हमें सारे के सारे पैसे नहीं मिले, 11,000 कैश मिला, 11,000 ऑन क्रेडिट अभी मिलना बाकी है, तो वो हमारे डेटर्स हो गए. तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट इन आवर क्वेश्चन. सेकेंड ट्रांजैक्शन, व्हेन वी हैव सोल्ड द गुड्स, तो हमारे 20,000 का स्टॉक कम हो गया, राइट. 20,000 के गुड्स हमने 22,000 में बेचे, तो 2,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ. और प्रॉफिट हुआ तो वो कहाँ ऐड होगा, हमारे कैपिटल में, येस और नो. नाउ what we have received is 11,000 cash, but what we have not received, जो हमें बाद में मिलेगा, that is debtors of rupees 11,000. पूरी इक्वेशन देखो, 11 + 11 22, 22 - 22, यहाँ भी 2 बैलेंस बच रहा है, वहाँ भी 2 बैलेंस बच रहा है. So our new equation, rest is 0, no changes. So our new equation is going to be 61,000 plus 1 lakh plus 40,000 plus 1 lakh plus 50,000 plus 11,000, no liabilities, plus 3,62,000. Okay. Next question, it says next transaction, depreciation on machinery provided at the rate 10%. वो कह रहे जो मशीनरी खरीदी है उसका 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो. डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया है. डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज़ अ एक्सपेंस, दैट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल को लेस कर देते हैं. तो लेट्स सी ओवर हियर. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, हमारे पास हमें डेप्रिशिएट किसे करना है, मशीनरी को. मशीनरी हमारी कितने की है, 1 लाख की. 1 लाख का 10% निकालेंगे तो आएगा 10,000 माइनस 10,000, एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस द कैपिटल 10,000. रेस्ट देयर इज गोइंग टू बी नो इफेक्ट ओवर हियर. So we are going to write the new equation.
61,000 plus 1 lakh plus 40,000 plus 90,000 plus 50,000 plus 11,000 equals to 0 plus 3,52,000. Clear? Let's see the next transaction. Fourth says cash withdrawn for personal use rupees 10,000. आपने अपने personal use के लिए पैसा निकाला. What is personal use? This is your drawings. Drawings reduces the capital और cash निकाला है तो cash कम हो जाएगा. ठीक है? Write down fourth point. Fourth, cash withdraw किया. अगर cash withdraw किया है personal use के लिए तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी. Let's write down the new equation. 51,000 plus 1 lakh plus 40,000 plus 90,000 plus 50,000 plus 11,000 is equal to 0 plus 3,42,000 rupees. Correct? Let's see next transaction. Interest on drawings charged at the rupees 5%. इससे पहले ही स्टेप पे हमने ड्राइंग्स करी है, पैसा विड्रॉ किया है 10,000 रुपये. तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने ड्राइंग्स करी है रुपीज़ 10,000 रुपीज़ की. वो कह रहे हैं जो ड्रॉ किया है इस पे अब कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है. आपको पहले भी मैंने ये पॉइंट समझाया था कि अगर आपकी कंपनी है, राइट, एंड दिस इज़ द पर्सन, उसकी ये कंपनी है, अगर वो कंपनी से कुछ पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्पस के लिए तो कंपनी बोलेगी कि ये पैसा आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं था, ये मेरे लिए था, हमारी कंपनी के लिए था. तो अगर आप ऐसा करोगे हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, है ना. तो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है. 5% इंटरेस्ट चार्ज किया. 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 10,000 का 5% अगर निकालेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी रुपीज़ 500. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर हम समझें, आपको लास्ट क्लास में भी मैंने पॉइंट समझाया था, अगर इसके दो एस्पेक्ट समझें तो कंपनी के लिए तो एक इनकम हो गई ना, इंटरेस्ट गेन किया उन्होंने तो कैपिटल बढ़ जाएगी, पर इस इंसान के लिए एक एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया तो कैपिटल घट जाएगी. तो इफ़ेक्ट दोनों जगह ही पड़ रहा है सेम अमाउंट से. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फिफ्थ पॉइंट, हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है 500 से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस पर्सन, और हमारी गेन भी हो रही है इन द एस्पेक्ट ऑफ आ बिजनेस. सो सेम अमाउंट से ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है और कहीं कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, राइट. सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन न्यू इक्वेशन. 51,000 plus 1 lakh plus 40,000 plus 90,000 plus 50,000 11,000 equals to 0, और प्लस माइनस करके दिस विल गेट कैंसल ओनली 3,42,000. Let's see the next transaction, what it has to say. Going to zoom it for you. Fine. Here. Sold, goods sold to Gupta for rupees 10,000. हमने कुछ गुड्स बेच दिए गुप्ता को 10,000 रुपीज़ के. तो इसका मतलब हमारा स्टॉक कम हो गया, बट उन्होंने हमें, अगर हम गुड्स सेल करते हैं नॉर्मली तो क्या होगा, इफ़ वी आर गोइंग टू सेल द गुड्स व्हाट विल हैपन, या तो कैश रिसीव होगा, नहीं है तो अगर गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल किए हैं तो हमारे पास डेटर आ जाएगा. इसके अलावा क्या होगा, सी ओवर हियर व्हाट दे आर सेइंग,
इसकी जगह आपको एक बिल रिसीवेबल मिल गया सेम अमाउंट का कि 3 महीने में पेमेंट हो जाएगी। अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा है तो बिल्स रिसीवेबल इज़ ऑल्सो एन एसेट, करंट एसेट फॉर द कंपनी, राइट। तो इसमें अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हमारा स्टॉक कम हो रहा है और एक और एसेट BR इंक्रीज हो रहा है। These two effects are coming. So what we are going to write in point number 6, there is no effect on cash, no effect on bank, but our stock is going to be reduced by 10,000, जिस पे हमें ना कैश मिला और जो हमारे डेटर्स थे उन्होंने बोला एक BR एक्सेप्ट कर लो। अगर बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे डेटर्स ख़त्म हो जाते हैं, उस बिल की वैल्यू बन जाती है बिल्स रिसीवेबल्स, okay, and that is going to be increased by rupees 10,000. No effect on liabilities or capital. Let's see our new equation. 51,000 plus 1 lakh plus 30,000 plus 90,000 plus 50,000 plus 11,000 plus 10,000 is equal to 0 plus 3,42,000. Let's see last transaction. What it says, received 10,000 from Gupta against the bills receivable on its maturity. वो कह रहे जब बिल्स मैच्योर हो गए, मतलब बिल्स मैच्योर होने का मतलब बिल जो उनके पास बिल था उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिल चुका है। सो हमें 10,000 रुपीज़ मिल गया। अगर हमें 10,000 रुपीज़ मिल गया तो एक तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 10,000 से, है ना, और जब हमें पैसा मिल जाएगा तो क्या उस बिल की वैल्यू रहेगी? रहेगी नहीं, उस बिल की वैल्यू नहीं रहेगी। आप ऐसा समझिए कि एक चेक था, उस चेक में से आपने पैसा, आपको चेक मिला, आपने वो बैंक में जाके चेक एनकैश करा लिया, पैसा आ गया ना आपके पास। अब क्या वो चेक की वैल्यू रहेगी? आप अपने पास रख सकते हो? नहीं, उसका जो काम था वो हो गया, तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही वो बिल्स रिसीवेबल, इट विल बी फिनिश्ड ऑफ नो यूज़। सो दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन आई गेस। यस, इसके बाद कुछ नहीं है। सो फाइनल equation is going to be 61,000 plus 1 lakh plus 30,000 plus 90,000, 50,000, 11,000. BR is now finished. 0 plus 3,42,000. When you're going to total it up, it is going to come as 3,42,000 only. Okay, so we are now done with our question number 15 also. Let's start with question number 16. Now let's start with question number 16. Here is your question number 16. It says that prepare an accounting equation for the following: started business with cash, purchased goods on cash and credit, goods हमने सेल किए, प्रॉफिट पे और सैलरीज पे करी। ये 4 पॉइंट्स हैं। लेट्स सी देम। नाउ व्हेन वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश, we are going to write cash 1 lakh rupees and capital again 1 lakh rupees. Second point, purchased goods, हमने गुड्स खरीदे, कैश पे भी खरीदे, क्रेडिट पे भी खरीदे, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। अगर हम देखें तो हमने स्टॉक 20,000 का भी खरीदा है और 30,000 का भी खरीदा है। टोटल 50 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, मैं प्रेफर करूँगी तो टोटल 50 लिख दो, बट अभी स्पेस है तो मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ वी हैव परचेज गुड्स फॉर कैश। जब सामान कैश पे खरीदा है तो आपका कैश ख़त्म हो गया, और जब सामान क्रेडिट पे खरीदा है तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए, राइट। और यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए 30,000 से। ओके, सो लेट्स सी आवर न्यू इक्वेशन. It is going to be 80,000 plus 50,000 is equal to 30,000 plus 1 lakh.
सी दिस ट्रांजैक्शन, इसी की वजह से मैंने क्वेश्चन लिया. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यू हैव सोल्ड द गुड्स विच वर कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 15,000. तो आपने टोटल गुड्स कितने के बेचे, 10,000 के और 15,000 के, मतलब टोटल 25,000 के अपना स्टॉक सेल कर दिया. तो आप सीधा पहले स्टॉक पे जाओ और लिख दो -25,000 रुपीज़. नाउ व्हेन यू हैव सोल्ड द गुड्स, 10,000 के जो आपने गुड्स सेल किए थे वो कैश पे किए थे और 15,000 के जो गुड्स सेल किए थे वो आपने क्रेडिट पे किए थे, पर दोनों को आपने एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% सेल किया. इसका मतलब यहाँ देखो, 10,000 के गुड्स को आपने 10,000 में सेल नहीं किया, आपने उसको 20% के प्रॉफिट पे सेल किया. मतलब 10,000 का 20% क्या होता है, 10,000 का 20% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आता है आपका 2,000 रुपीज़. इसका मतलब 10,000 की चीज़ आपने कितने में सेल करी है, 12,000 में. और ऐसे ही जो 15,000 की थी आपकी ऑन क्रेडिट, उसका अगर आप 20% निकालोगे तो आपका आएगा 3,000. तो इसका मतलब 15,000 को आपने कितने में सेल किया है, 15 प्लस प्रॉफिट 18,000 में सेल किया. यू गेटिंग दिस? इसका मतलब 10 minus 12 is 2,000 एंड 15 minus 8 is 3,000. वो तो आपका नॉर्मली ये है ही, इतना का प्रॉफिट है. तो ये आपने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट टोटल कितने का हो गया, 5,000. और प्रॉफिट हमारा कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में. दोबारा देखो इसको, आपने गुड्स बेचे 10,000 के और 15,000 के, 10,000 कैश पे और 15,000 क्रेडिट पे, तो -25,000. 10,000 की चीज़ आपने सेल करी है 20% प्रॉफिट पे और 10,000 की चीज़ 12,000 में सेल कर दी. ये आपका कैश बेसिस पे था. तो इसका मतलब आपके पास 12,000 रुपीज़ कैश आ गया. येस और नो? 10,000 की चीज़ 12,000 में सेल करोगे तो 2,000 का प्रॉफिट भी तो यहाँ पे आ गया. सेकेंड थिंग, 15,000 का आपने 20% प्रॉफिट पे सेल तो किया पर क्रेडिट पे किया. जब हम चीज़ क्रेडिट पे सेल करते हैं और जिनको हम चीज़ें क्रेडिट पे बेचते हैं वो कौन होते हैं, हमारे डेटर्स. और उनसे क्योंकि पैसा वापस आना बाकी है, दैट इज़ वाई दे आर आवर एसेट्स. सो हमने 15,000 की चीज़ कितने में सेल करी है, 18 में. तो हमें कितने पैसे लेने हैं डेटर्स से, 18 लेने हैं, 15, 18. और इसका भी प्रॉफिट हमारा कहाँ ऐड हो जाएगा, यहीं पर ही. आप चाहो तो इकट्ठे लिख सकते हो +5,000, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लिखा है. तो आपकी न्यू इक्वेशन जो अब बनेगी दैट विल बी 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1,05,000. लास्ट इज पेड सैलरी, सैलरीज पे कर दी तो कैश कम हो गया आपका 8,000 से, और यहाँ भी आपका कैपिटल कम हो गया बाय द अमाउंट 8,000. सो आवर फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी 84,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 97,000. ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला बैलेंस शीट के लिए, सो दैट्स इट. सो वी हैव डन question 11, 12, 15 and 16. Your homework is to complete all the question from question 1 to question number 17 of your notebook. और इसमें से हमने काफ़ी questions already कर लिए हैं discuss. We have done question number 6, question number 8 and now 11, 12, 15 and 16. ये तो आप वीडियो से कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस रिमेनिंग आपको नोटबुक में करने हैं. एंड डो नॉट राइट क्वेश्चंस इन नोटबुक, जस्ट राइट डाउन द आंसर सॉल्यूशंस एंड देन नेक्स्ट वीडियो विल बी one video in which I am going to cover the last topic. Thank you so much class. Hope you complete your work on time and send it so that I can give the corrections. Thank you.